Let us see one more problem. Find the value of k. Find the value of k so that the following system, of equation has first 3x minus y minus 5 equals to 0 and 6x minus 2y minus k equals to 0 has no solution. तो देखते हैं इसमें कंडीशन फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज द कंडीशन सो दैट दिस पेयर हैज इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. You know, for no solution, your lines will be parallel. और पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है? पैरेलल होने के लिए कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Here a1 is here 3 by 6, b1 by b2, b1 is here minus 1 and b2 is minus 2, c1 is here minus 5 and this is minus k. Now solve this equation. This is 2 and this is cancel and this should not equal to 0. That means using this 2 equation 1 by 2 is equal to 5 by minus minus cancel 5 by k. So k is not equal to your 10. यानी k 10 के बराबर नहीं होना चाहिए. बाकी सारे वैल्यू के लिए देयर विल बी सॉल्यूशन. k अगर 10 होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा. ये कंडीशन होल्ड करने का मतलब है कि लाइंस विल बी पैरेलल. दैट मीन्स देयर इज नो कॉमन पॉइंट. नो कॉमन पॉइंट मीन्स देयर विल बी नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन के लिए आप कंडीशन क्या है? a1 by a2 is equal to b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और यही वैल्यू आ गया. k is not equal to 10. देन द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. 3x minus y minus 5 equals to 0, 6x minus 2y plus k equals 0 has infinite number of solution. Then find the value of k. For infinite number of solution, we know geometrically lines will be coincident. Coincident line means overlapping line. एक दूसरे को ये यानी infinite times कट कर रहा है. जितनी बार कट करेगा that is solution. तो इसके लिए क्या कंडीशन है? फॉर दिस कंडीशन इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. a1 is here 3, b1 is minus 1, c1 is minus 5, a2 6, b2 minus 2, c2 k. तो आप इससे हम डिराइव कर सकते हैं, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपके पास आ गया 3 by 6 and this is minus 1 by minus 2 and this is minus 5 by k. अब इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस रेशियो इज 1 by 2, दिस इज 1 by 2. तो आप इन दोनों को एक साथ यूज कीजिए. तो आपके पास आ गया 1 by 2 इज इक्वल टू 5 minus 5 by k. दैट मीन्स आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट k इज इक्वल टू minus 10. दैट मीन्स इफ k इज minus 10 then equation will be coincident and your solution will be infinite. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू जो होगा वो होगा -10. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 3x plus y is equals to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1. तो this has no solution. For no solution, lines will be parallel. If lines are parallel, that means your condition is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. c1 c2 equal नहीं है, but a1 by a2 is equal to b1 by b2. That means you can write this is 3 by 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1 is not equal to your 1 by 2k plus 1. अगर ये इस साइड भी होता तो माइनस माइनस दोनों से कैंसिल हो जाता, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं फॉर दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में हमने सॉल्व किया 3k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दिस इज 3k माइनस
3k minus 3 is equal to 2k minus 1. That means 3k minus 2k is equals to 1 plus 3 minus 1 plus 3. It means this is k is equal to 2. That means for k equals to 2, if value of k is 2, then the system of equation has no solution. Linear equation will be parallel. In this equation, your a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. That means lines are coincident. Lines coincident, that means it has your infinite और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. यानी ये लाइन जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो कई बार इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं. क्योंकि देखिए ये दोनों का रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 का रेशियो जो है वो फिक्स है, वो है 1/2 और इक्वल भी है. तो दिस इज द केस ऑफ योर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. Now let us see the example of your elimination method. Elimination method, solve for x and y. In using elimination method, your equation is here 7x minus 5y is equal to 11, and second equation is 3x plus 4y is equal to 17. This is second equation and this is your first equation. तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, पैरेलल पहले लिख लेते हैं. दैट मीन्स 7x minus 5y is equal to 11 and this is 3x plus this is 4y is equal to 17. तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है कि कोई एक वेरिएबल दोनों में सेम हो जाए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूं एक एग्जांपल कि इस इक्वेशन में इक्वेशन 1, लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से. लेट दिस इज 4 एंड इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं 5 से. तो देखिए 5 इंटू 4 20 एंड 4 इंटू 5 20. तो y हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. और सेम होने के बाद देखिए न्यूमेरिकली सेम बट साइन इज ऑपोजिट. तो साइन ऑपोजिट होने से इसको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 4 दिस इज 28x माइनस 20y इज इक्वल टू 44 एंड 5 से इंटू कीजिए इसको. 5 इंटू 3 दिस इज 15x प्लस 20y इज इक्वल टू हियर 85. दिस इज योर 85. नाउ ऐड करने पे देखिए ये दोनों को ऐड किए तो ये देखिए माइनस 20y और 20y कैंसिल हो गया. And 28x plus 15x is your 43x. This is 43x and this is 44 plus 85 is your 129. This is 129. That means x is equals to 129 by 43. That means अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं. That means this is your 3. That means the value of x is here 3. जब 3x का वैल्यू आपके पास आ गया और इस वैल्यू को आप इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. किसी भी एक इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है. फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं. तो आपके पास आ गया 3 इंटू 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 17. इट मीन्स ये कितना हो गया, दिस इज एंड प्लस दिस इज 4y इज इक्वल टू 17. That means 4y equals 17 minus 9. That means 4y is equal to your 8. That means y is equal to 2. That means x is your 3 and y is 2. आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं. इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाई कीजिए या फिर यहाँ पर पुट कीजिए. पुट करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर जो है वो सही है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिखिए वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 3. 7 इंटू 3 माइनस 5 इंटू वाई, वाई इज योर 2 इज इक्वल टू 11. देखिए दिस इज 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11. सेम रिपीट कर सकते हैं इक्वेशन 2 के लिए भी
इक्वेशन 2 के लिए 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या है 3, दिस इज 3 प्लस 4 इंटू वाई इज हियर 2 एंड दिस इज 17। तो देखिए आपके पास ये आ गया 9 प्लस 8 is 17, that means LHS equals to RHS, so it is verified। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं and this process is called elimination process। Now let us see the next process to solve the problems of your linear equation cross multiplication method। Let there are two linear equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second equation is a2x plus b2y plus c2 equals to 0। First draw this diagram, x, write down x, this is y and this is 1। below x write down x, जब लिखेंगे तो इसको हटा देंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या b1, this is b2 और यहाँ लिखिए c1, इसको लिखिए c2, फिर लिखिए यहाँ पे this is a1, this is a2, again write down b1 and this is b2। अब आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, एक एरो लगाइए, दिस एरो फॉर b1 टू c2 और फिर b2 टू c1 एक एरो इस तरह से लगाइए, दैट मीन्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर क्या करेंगे, फिर से एरो लगाइए ऐसे c1 a2 और फिर एक एरो दीजिए इस तरह से, फिर यहाँ पर भी सेम रिपीट द स्टेप, योर एरो एक इस तरह से और एक इस तरह से एरो। तो अब जब एरो आप दे दिए तो ये आपके पास क्लू हो गया, हिंट्स हो गया। Now you can write x divided by x by आप लिख दीजिए b1 into c2, write down b1 into c2 minus b2 into c1, this is b2 into c1, this is x। Now अब y निकालने के लिए, तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, c1 into a2, तो यहाँ पे लिखेंगे y के लिए y divided by c1 into a2 minus c2 into a1, c2 into a1। next 1 by, अब 1 divided by लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास a1 into b2, this is a1 into b2 minus a2 into b1, a2 into b1। now अब इन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिखिए, फिर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ, तो दैट मीन्स यू कैन राइट दिस इज b1 c2 minus b2 c1 is equal to 1 by here a1 b2 minus a2 b1। तो अब इसको हम भेज सकते हैं, इस डिनोमिनेटर को इधर बना देते हैं न्यूमरेटर, दिस इज x। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1। this is the value of x, b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus your a2 b1। similarly you can find the value of y का भी वैल्यू इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यू कैन राइट y डिवाइडेड बाय c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 divided by a1 b2 minus a2 b1। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप यहाँ से y निकालिए, देन y इज इक्वल टू हियर, इसको आप न्यूमरेटर में भेज दीजिए c1 a2 minus c2 a1 divided by a1 b2 minus a2 b1। this is the value of your y। ऑलवेज रिमेंबर डिनोमिनेटर का टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। One question on your cross multiplication method. Solve the following equation. Solve the following equation. 2x plus 3y is equal to minus 8. This is equation 1. And 4x plus 5y plus 14 equals to 0. This is equation 2. Using cross multiplication method, cross multiplication method। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यू हैव टू सॉल्व विथ
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करेंगे, दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। -8 को मैंने इधर ले आया और ये हमारे पास है दिस इज 4x प्लस 5y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज c1, a2, b2, b2 एंड c2। तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए x और यहां पर लिख लीजिए 3, जैसे मैंने ऑर्डर बताया था इससे पहले वाले में, एंड दिस इज 8 एंड 14, ये हमने लिख लिया। एंड दिस इज x बाई दिस वन, अगेन y डिवाइडेड बाई। तो y डिवाइडेड बाई लिखने के लिए या तो y डिवाइडेड बाई लिखिए या माइनस भी ऊपर करके लिख सकते हैं। माइनस ऊपर करेंगे तो ये साइन को रोटेट कर देंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप लिख लीजिए 2 4 2 4 एंड दिस इज योर 8 14, दिस इज 8 एंड 14 एंड दिस विल बी माइनस। अब फिर इसके ऑर्डर को चेंज करना होगा तो ये माइनस हटाना होगा आपको। तो दिस इक्वल्स टू 1 बाई 2 4 3 5, 1 बाई 2 4 3 5, दिस इज योर ऑर्डर। नाउ यू कैन राइट x बाई लिख लीजिए 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 5 एंड इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 4, 1 डिवाइडेड बाई इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। यू कैन राइट। Now you can equate this equal to this one. That means x by 2 is equal to minus 1 by 2. 2 cancel. That implies x equals to minus 1. And this one is your y by. After simplification, you will get your answer. X equals to minus 1 and y is equal to minus 2. You can verify your result after putting the value of x and y इन इक्वेशन 1 एंड 2। इस वैल्यू को आप चाहे तो यहाँ पर पुट भी करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये माइनस हटाएंगे तो ये ऑर्डर लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा ये ऑर्डर, अदरवाइज आपको माइनस रखना होगा। इससे अनदर इक्वेशन एंड वी विल सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इक्वेशन इज योर 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज एंड 2x plus y minus 8 equals 0 by cross multiplication method. So using cross multiplication method you can write x divided by, you can write this is a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 is 3, b1 is minus 1, c1 is minus 2 and a2 is here 2, this is 1 and this is minus 8. That means you can write in order, this will be minus 1 1 minus 2 minus 8 and this is equal to y divided by, you can write या तो माइनस लगाएंगे तो ऑर्डर चेंज करना होगा, यहाँ पे ध्यान रहे पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात किया था। या माइनस नहीं लगाएंगे तो आप इस ऑर्डर को लिखेंगे -2 बाई -8, दिस इज 3 एंड 2 एंड दिस इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, अब आप लिख दीजिए इसमें ऑर्डर को 3 2 2 minus 1 1. This is your order. Now solve. This is x divided by minus minus 8. This is minus plus 2. ये हमारे पास आ गया, ये -1 होता this into this minus this into this, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया। एंड नाउ दिस इज y डिवाइडेड बाई, दिस इज -4 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 24 and 1 by this is 3 minus minus plus this is 2, ये हो गया आपके पास 2। now you can solve this equation। अब इस इक्वेशन को आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने पे आएगा आपके पास this is x by 10 and this is this into, अब इन दोनों को पेयर लीजिए आप और या फिर इन दोनों को लीजिए तो इससे y निकलेगा और इन दोनों को लेने पे x आएगा आपके पास। this is 1 by आपके पास आ गया 5। नाउ x को उधर भेज दीजिए तो यू विल गेट x इक्वल्स, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स 10 by 5, दैट मीन्स दिस इज 2, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज हियर 2
आपका x का वैल्यू निकल गया। y को भी सिमिलरली आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y डिवाइडेड बाई दिस इज योर 20 इज इक्वल टू 1/5, ये आ गया। दैट इंप्लाइज यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 20/5, दैट मीन्स दिस इज 4, यानी y का वैल्यू आपका आ गया 4। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू टू वेरीफाई। x और y को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए और आपके पास जो राइट साइड आएगा वो 0, या फिर यहाँ पर भी पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को, इस जो वैल्यू को आप चेक करना चाहते हैं कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो यू कैन पुट दिस इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2। किसी एक इक्वेशन में भी पुट करके कर सकते हैं ये काम, और उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स x is 2 and y is 4 योर करेक्ट आंसर।